بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درد دل پارٹ 2 چلیے شروع کرتے ہیں۔ علی سے کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سکندر بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ علی سے اس وقت سکندر کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی اور سکندر سے مخاطب تھی۔ ہاں بولو، خیریت؟ آپ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اب چاہے وہ آپ ہو یا کوئی اور۔ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ بس شادی سے انکار کر دے۔ سکندر حیران کھڑا علیزے کو دیکھ رہا تھا، جو کسی بھی خوف سے بالا تر ہو کے اسے انکار کر رہی تھی۔ سکندر بھائی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کوئی جواب دے۔ آپ انکار کر دینا، علیزے پر اعتماد لہجے میں بولی۔ علی سے دو باتیں اب دھیان سے سنو۔ پہلی، میں ڈیڈ کو اقرار کر چکا ہوں، اب انکار نہیں کر سکتا، میں ان کا یقین نہیں توڑنا چاہتا۔ اور دوسری بات، بہتر ہوگا اگر تم سکندر بھائی کی بجائے اب صرف سکندر بولو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ علی سے بے یقینی کی کیفیت میں سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا، تبھی علی سے سکتے سے باہر آئی۔ حیا اور فرحان کہیں سے آ رہے تھے، حیا اور فرحان کہیں جا رہے تھے، تبھی ان کی نظر علیزے کی طرف گئی، جو روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ علیزے نے دروازہ زور سے بند کیا، جس سے فرحان اور حیا چونک گئے۔ دروازہ نوک ہوا۔ علیزے نے آنسو صاف کیے، وہ کسی کے سامنے بھی کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آ جائیے، علیزے کی پرجوش آواز سنائی دی۔ میری جان علیزے، کیا ہوا؟ فرحان نے داخل ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، علیزے کے آنسو کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ نہ میرا بیٹا، رونا نہیں، بس چپ کرو۔ اور نہیں بھائی، پلیز آپ سب کو روک دے، مت کرے میرے ساتھ یہ سب۔ دیکھو میری گڑیا، یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ سکندر از اے بیسٹ فار یو۔ لیکن بھائی، مجھے نہیں کرنی شادی، چھوڑو اسے۔ میرے پاس بہت اچھی خبر ہے تمہارے لیے۔ علیزے نے فرحان کی طرف دیکھا۔ یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے ڈارلنگ پھوپھو۔ واقعی بھائی؟ ہاں جی بالکل۔ علیزے کے چہرہ کھل اٹھا تھا، وہ اپنے سارے غم بھلا کر بھائی کی خوشی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر حیا کو گلے لگایا۔ فرحان علیزے کو دیکھ کر کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ علیزے چلو چینج کرو، پھر ہم تینوں باہر چلتے ہیں کھانے پہ۔ نہیں بھائی، آپ لوگ جائیے، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی، اس نے ساتھ ہی آگ دباتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، چلو صبح ناشتے پر ملتے ہیں، اور ضرور آنا۔ اوکے بھائی، میں آ جاؤں گی، گڈ نائٹ۔ ادھر سکندر اپنے رویے پہ نادم تھا، اسے علیزے کو نرمی سے سمجھانا تھا، اس وجہ سے وہ ساری رات سو بھی نہ سکا۔ صبح ناشتے پہ علیزے کے علاوہ سبھی موجود تھے، جبکہ سکندر کی آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ بیٹا خیر تو ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم سوئے نہیں ہو۔ جی چچی، رات نیند نہیں آئی۔ تبھی علیزے نے سب کو سلام کیا۔ اس نے ایک نظر سکندر پر ڈالی، جو کھانے میں مہور تھا، اور سبین کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ فرحان نے سب کو شادی کی بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ناشتے کے بعد دانیال ہسپتال جا چکا تھا اور باقی لوگ آفس، لیکن سکندر گھر پر ہی تھا، اور وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھر کی باقی عورتیں شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ زہرا، جا کے علیزے کو بلا لاؤ۔ جی بیبی، میں بلاتی ہوں۔ علیزے بیٹا، آپ کو چھوٹی بیگم بلا رہی ہے۔ اچھا، میں آتی ہوں، آپ چلیے۔ وہ جانتی تھی کہ کیا بات کی جائیں گی، اس کے لیے وہ تیار تھی۔ آؤ علیزے، دیکھو مایوں اور مہندی کے لیے کون سا جوڑا اچھا لگے گا؟ جو آپ کو اچھا لگے۔ اس شادی میں میری کوئی مرضی شامل نہیں ہے، اس لیے جو دل کرے وہ کرے آپ لوگ، کہتے ہوئے وہ باہر لان میں چلی گئی۔ انسا علیزے کی اس طرح باہر چلے جانے پر آمینہ کے سامنے نادم ہوئی تھی۔ کیا ہم سکندر کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے؟ سکندر کب تک یہ سب برداشت کرے گا؟ انسا نے فکر مندی سے کہا۔
चची जान आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सिकंदर भाई सख्त मिजाज है मगर प्यार करने वाले हैं, वो उसे ठीक कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हमेशा खुश रहे वो, आमीन। शाहविला में हर तरफ खुशी का समा था। शादी की तैयारियां उरूज पर थी। अकमल और सारा इस वक्त अलीज़े के कमरे में मौजूद थे। अलीज़े ने चुप ना रहने की कसम खाई थी। वो मुसलसल रो रही थी, जबकि सारा, अकमल और उमर उसे चुप करवाने में मसरूफ़ थे। फॉर गॉड सेक अलीज़े, अब चुप हो जाओ। टिश्यू का तीसरा डिब्बा ख़त्म कर चुकी हो तुम। बस हो गया अब। मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आ रही, कैसे सब कुछ भुलाकर नॉर्मल हो चुके हो तुम। अलीज़े तुम ये नहीं कह सकती। अली और मेरी 6 साल की दोस्ती थी, हम 6 साल साथ रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है मैंने अली के साथ, लेकिन बस उमर इतना ही कह सका और उसकी आवाज़ भारी हो गई और कुछ कतरे उसके रुखसार पर बह निकले। अलीज़े तुम्हें सिर्फ इन यादों से अजियत मिलेंगी और कुछ नहीं। खुदा को शायद तुम्हारा और अली का साथ यही तक मंजूर था। बिल्कुल अलीज़े, अकमल ठीक कह रहा है। वैसे भी सिकंदर भाई बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और बहुत जल्दी तुम्हें इस अजियत से भी निकाल देंगे। प्लीज़ आप लोग सिकंदर का राग अलापना बंद करो। 24 घंटे यही सुनती रही हूँ मैं। तुम लोग तो अब ये सब मत करो। तभी सबीन कमरे में दाखिल हुई। अलीज़े, ये लो मायू का ड्रेस, जल्दी पहन लो, फिर रस्म भी शुरू करनी है। अलीज़े ने गंभीर निगाहों से सबीन को देखा। अच्छा सबीन, मैं तैयार करा कर नीचे ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाना, चची जान इंतज़ार कर रही है। जबकि अलीज़े सिर्फ चुप बैठी सबीन की गुफ्तगू सुन रही थी। इसके चेहरे पे कोई भी तासुर नहीं था। अकमल ने एक नज़र सबीन को देखा जो हल्के मेकअप में गजब ढा रही थी। सबीन अकमल की निगाहों से घबरा चुकी थी। बस करो अकमल, वो जा चुकी है, उमर ने शरारती अंदाज में कहा तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अब तुम लोग भी बाहर जाओ, सारा ने अकमल और उमर को कहा। ओके मैडम जी। और कुछ? उमर ने बिल्कुल सारा के करीब होकर मुखातिब किया। जनाब, ये पब्लिक पैलेस है, अकमल ने अपना बदला पूरा करते हुए कहा। सारा ने सिर्फ घूरने पर इत्तेफाक किया। यूनिवर्सिटी में सबीन अलीज़े की जूनियर थी। यूनिवर्सिटी में रैगिंग का दौर था। तभी एक सीनियर ने सबीन को टास्क दिया था कि वो अकमल को जाकर प्रपोज करे। वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन अकमल बिल्कुल सीरियस हो गया। फिर बाद में इसे पता चला कि वो अलीज़े की कज़न है। अलीज़े ने 2-3 दफ़ा सबीन से बात भी की, लेकिन सबीन ने इनकार कर दिया कि वो अभी स्टडी पे फोकस करना चाहती है। अकमल ने भी थोड़ी स्पेस दे दी। कब तक बचोगी मुझसे? आखिर आना तो मेरे पास ही है ना। आवाज़ थोड़ी पहचानी लग रही थी। सबीन जो कि फूलों की पत्तियां निकालने में मसरूफ़ थी, अचानक पीछे मुड़ा तो सामने अकमल खड़ा था और उसे टकटकी बांधे देखने में मसरूफ़ था। आप यहाँ? बिल्कुल, मैं यहाँ आपके सामने। अकमल का अंदाज शरारती था, लेकिन सबीन थोड़ा घबरा गई थी। प्लीज़ अब जाए, कोई आ जाएगा। तो आने दो, परवाह किसको है। बाय द वे, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। सबीन ने घबरा कर पलकें झुका ली। ओहो, शर्माती हुई तो और भी हसीन लगती हो आप। प्लीज़ जाए यहाँ से। ओके, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना इधर ही हूँ मैं। कहते हुए अकमल बाहर चला गया। सबीन ने शुक्र अदा किया और वापस काम में मसरूफ़ हो गई। अलीज़े को रस्म के लिए हॉल में लाया गया था। थोड़ी सी डेकोरेशन की गई थी। मर्द हजरात के लिए ऐलान था कि वो बाहर लॉन में ही रहेंगे। अलीज़े पीले इम्तिराज के सूट में बिला की हसीन लग रही थी। इसके चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में बिल्कुल वीरानी थी, जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। अंसा और आमिना ने रस्म शुरू की। तभी सिकंदर किचन में पानी लेने के लिए आया। सारा किचन में ही थी। सिकंदर अलीज़े को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जी सिकंदर भाई, कोई काम था आपको? सारा ने थोड़ी संजीदगी से कहा, लेकिन लहजा शरारत से भरपूर था। हाँ, नहीं, वो जी बताइए। वो मुझे पानी चाहिए था। बस पानी ही? हाँ, बस पानी ही।
वैसे अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। सच? सिकंदर ने पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन लेकिन क्या? एक शर्त, मुझे हर शर्त मंजूर है। पक्का? हाँ पक्का, सोच ले। हाँ सोच लिया। चलिए मैं पहले अपनी शर्त बता दूँ। भाई आप वादा करें कि कभी भी अलीज़े को उसकी माजी का ताना नहीं देंगे और ना ही अली की मोहब्बत का ताना देंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे पता है कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अलीज़े अभी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इसलिए तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी दोस्त को शहजादी बनाकर रखूंगा। अच्छा अब दिखा भी दो कि आप यहीं पे जान लूंगी। हा हा हा। भाई आप इस विंडो के सामने खड़े हो जाए। अली से तो सामने नहीं है। एक मिनट मैं जाती हूँ। सारा किचन से निकलकर हॉल में आ गई। अली से यहाँ क्या कर रही हो तुम? उठो, इधर बैठो, जो तुम्हारी जगह है। नहीं, मैं ठीक हूँ इधर ही। उठो ना, मैं कह रही हूँ ना। अच्छा। अली से अब सिकंदर के बिल्कुल सामने थी। सिकंदर पलक झपकाना ही भूल गया था। वो अब अलीसे को देखते ही इसके शहर में मुब्तला हो चुका था। तभी सारा वापस आई। अब जा सकते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, बस अपना वादा याद रखिएगा। रात अलीसे कमरे में पानी ना होने की वजह से किचन में आई थी, जबकि इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। इसके आने से पहले किचन में कोई और भी था जो कप में कॉफ़ी उड़ल रहा था। मम्मा प्लीज़ मुझे पानी पिला दे, कहकर खुद किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। पानी का गिलास थाम किसी ने टेबल पर रख दिया। मम्मा अब पानी पिला भी दे, आपको पता है ना मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। आप बात क्यों नहीं कर रही है? क्या अभी भी नाराज़ है मुझसे? कर तो रही हूँ शादी आप लोगों की खुशी के लिए। जब कोई जवाब ना आया तो उसने पीछे देखा, जहाँ सिकंदर हाथ बांधे उसकी बातें सुन रहा था। सिकंदर भा। तभी सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर उसके हैरत से खुले लबों पर अपनी उंगली रख दी। सिर्फ सिकंदर, ओके, ये लो पानी। सिकंदर ने पानी का गिलास उठाकर अलीसे के आगे कर दिया। अलीसे बस एक घुट ही पानी पी सकी। गिलास रखकर कॉफ़ी का मग उठाए वो बाहर चला गया। शाह विला में घमाघमी थी। सब लोग रात के फंक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ थे। नाश्ते से फारिग होकर हॉल में बैठे थे। बाकी लड़के बाहर लॉन की डेकोरेशन में मसरूफ़ थे, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन घर में ही होना था। रात के बाद से सिकंदर का अलीज़े से सामना नहीं हुआ था। उस सुबह से अपने कमरे में ही थी। हया, सबीन, सारा, हुमा, फातिमा पार्लर जाने के लिए तैयार थी। नीचे हॉल में बैठी अलीज़े का इंतज़ार कर रही थी। इतने में अली के वालिदैन हॉल में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। सब घर वालों ने उनका खैर मुकद्दम किया। कमर साहब, हमें बहुत खुशी है कि आप लोग आए। आना तो पड़ना था ना, हमारी बेटी की जो शादी थी। अलीज़े कहाँ है? नज़र नहीं आ रही? मिसेस कमर ने पूछा। सब लोग पार्लर जा रहे हैं तो अलीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तैयार होकर अभी आती होंगी। कमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा मशवरा दिया। अलीज़े और सिकंदर की शादी का। नुमान शाह ने कहा। क्या मतलब डैड? दानिया ने हैरानी से नुमान शाह को देखा। मतलब ये कि जिस दिन तुमने सिकंदर और अलीज़े के लिए बात की थी, इससे एक दिन पहले कमर साहब ने हमें कहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे करें। तभी तुमने बात की तो हमें लगा कि बाकी घर वाले भी शायद राज़ी होंगे। फिर आप लोगों ने मुझे अज़ियत दी। अली से बोली, जो सीढ़ियों पर खड़ी इन लोगों की गुफ्तगू सुन चुकी थी। आंटी, अंकल, आप भी इनके साथ शामिल थे। आप तो देख सकते थे कि मैं आपके बेटे की अमानत हूँ। आप लोग मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? आपने ये फैसला करते हुए भी एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। आप सब लोग कैसे इतने बेहिस हो सकते हैं? अलीज़े बस करो, बहुत हो गया, अब जाओ अपने कमरे में। अंसा बेगम गुस्से से बोली। तभी सिकंदर हॉल में दाखिल हुआ। मैं क्यों चुप करूं? आप सब लोग मेरी जिंदगी का
इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? अली से बस करो, कोई भी और तमाशा मत करो, हमारे सब्र को और ना आजमाओ, जाओ तुम। अली से अपने कमरे में जा चुकी थी। सिकंदर खड़ा ये सब देख रहा था। बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या कह रहे हो? विकार शाह का गुस्सा सवा नेज़े पे था। हुमा और सारा भी सिकंदर के इस फैसले पर हैरान थी। मैंने आप सबको कहा था कि कोई भी फैसला अलीज़े की मर्जी के बगैर ना हो, फिर भी आप लोगों ने। सिकंदर भाई अली से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। हया ने जवाब दिया, बस बहुत सुन लिया फरहान, जाके मौलवी साहब का बंदोबस्त करो, इससे पहले किसी और का दिमाग खराब हो। मेहंदी से पहले इन दोनों का निकाह कर दिया जाएगा। जी डैड। अली से तो ना समझ है, और इसके साथ पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ है वो ऐसा बिहेव कर सकती है, लेकिन तुम तो समझदार हो, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। सॉरी डैडी, मैं बस अलीज़े की वजह से कह रहा था। बच्ची है, शादी के बाद नॉर्मल हो जाएगी। जी डैडी, अब हमें इजाज़त दे, हम चलते हैं। तभी मिस्टर कमर ने उनसे इजाज़त तलब की। नहीं, आप लोग खाना खा के जाएंगा। नहीं, हम लोग अब चलते हैं। आयमा घबरा जाती है अक्सर जब से अली की डेथ हुई है। हम तो बस ये गिफ्ट्स देने आए थे, अलीज़े की शादी के लिए खरीदे थे, अब इसको देने आए थे। मिसेस कमर के आंसू का जब्त टूट चुका था। अंसा बेगम ने आगे बढ़कर उनको हौसला दिया। क्या मैं एक दफ़ा अलीज़े से मिल सकती हूँ? ज़रूर, क्यों नहीं, वो आपकी ही बेटी है। अलीज़े की आंखें सुर्ख हो गई थी। साफ जाहिर था कि जब से कमरे में आई है रो रही है। अलीज़े, मुझे माफ़ कर देना, मिसेस कमर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अलीज़े इनको आता देख खड़ी हो गई थी। आंटी, कैसी बात कर रही है आप? अलीज़े की आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। मैं अपना बेटा खो देने के बाद बेटी को नहीं खोना चाहती थी। मैं ये नहीं देख सकती थी कि तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दो। बेटा, अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। सिकंदर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा मेरी बेटी। मेरी बात ना मानो, लेकिन प्लीज़ अली के मम्मा की बात ज़रूर मान लेना। आंटी प्लीज़, आप ऐसे मत कहे। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बात पे अमल कर सकूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकती। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। मैं ये कैसे भूल गई कि आपने अपना बेटा खोया है जिससे आप इतना प्यार करती थी। कोई बात नहीं बेटा, समझ सकती हूँ। चलो मेरे साथ नीचे। जी चलिए। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। मम्मा प्लीज़, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा आप तो माफ़ कर दें मुझे, फिर सब माफ़ कर देंगे। अली से विकार साहब से मुखातिब थी। विकार शाह ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं। हम समझ सकते हैं कि तुमने जानबूझकर नहीं कहा सब। हमें वाकई ये फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं करना चाहिए था। चलो शाबाश मेरा बेटा, मूड ठीक करो अपना। अच्छा, अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मिस्टर एंड मिसेस कमर अब जा चुके थे। चलो अलीज़े बेटा, अब आप पार्लर चलो, बहुत देर हो गई है। आमिना बेगम ने प्यार से कहा। फातिमा अपी, जोहेब भाई किधर है? ओ बेटा, मैंने तो उसे किसी काम से भिजवाया है। अब क्या होगा? सबीन ने फिक्रमंदी से कहा। अकमल भाई, सारा ने बहुत ही प्यार से अकमल को मुखातिब किया, जो अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ था। जी बहना, क्या काम है आपको? आप हमें पार्लर तक छोड़ दे प्लीज़। जी जी, क्यों नहीं, हम आपके लिए ही तो यहाँ हैं। सब लोग उनकी गुफ्तगू दिलचस्पी से सुन रहे थे। मुझे मालूम था इतने प्यार से आप मुझे तभी बुलाती है जब आपको कोई काम होता है मुझसे। जोरदार कहकर हॉल में बुलंद हुआ था। मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। अंकल पता है आपको, ये यूनी में भी ऐसे ही करती थी। दोनों को जब भी मुझसे कोई काम होता तो अकमल भाई और वैसे ऐसे ट्रीट करती थी मुझे जैसे मैं इनका कोई छोटा भाई या बहन हूँ। मैं नहीं जा रहा, अलबत्ता तुम्हारे और अलीज़े के अलावा कोई और कह दे तो जा सकता हूँ। अकमल ने शरारती अंदाज में सबीन को देखा, जो अकमल से घबराकर खुद में समेट गई थी। वाह भाई, सबीन अभी तो मंगनी भी नहीं हुई और पहले से हर बात मानी जा रही है।
सबीन हैरान खड़ी सबको देख रही थी। तभी सबीन को याद आया कि इसने अकमल के लिए अलीज़े से अपनी पसंदगी का इजहार किया था। सबीन पे पहाड़ तब टूटा जब उसे पता चला कि 2 दिन पहले अकमल के वालिदैन आए थे और अलीज़े के कहने पर उन्होंने रिश्ता तय कर दिया था। सबीन कुशन लेकर अलीज़े के पीछे थी। अलीज़े, तुम तो आज नहीं बचोगी। प्लीज़ अकमल, बचाओ इससे। तुम्हारा भला करते करते मैं अपनी जान नहीं दूंगी। सब लोग उनकी शरारतों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि अलीज़े के चेहरे पे पहली वाली मुस्कान थी। अलीज़े सीढ़ियों से आते हुए सिकंदर से टकरा गई, जो मिस्टर कमर के जाने के बाद अपने कमरे में चेंज करने के लिए चले गया था। अलीज़े के चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ साथ नागवारी के तासुरात भी थे, जिसे सब अफराद ने महसूस किया था। बड़े तो एक दफ़ा फिर परेशान हो गए थे कि सिकंदर को कबूल करने के लिए वो किसी भी कीमत पे राज़ी नहीं थी। सबीन ने खामोशी तोड़ी। अकमल जी, क्या आप हमें पार्लर तक छोड़ आएंगे? जी जी बिल्कुल, बस आप हुक्म करें। साथ ही हॉल में हूँ की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन अलीज़े के चेहरे पे अभी भी नागवारी थी। अच्छा, अब चलिए, बहुत लेट हो गए हैं। जी फातिमा अप्पी, सबीन ने फ़ौरन कहा, जो बाहर जाने का सोच रही थी। हाँ चलो। मेहंदी की तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मेहंदी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मेहंदी का फंक्शन घर के लॉन में ही होना था, इस लिहाज से लॉन को डेकोरेट किया गया था। सब मेहमान आ चुके थे। अलीज़े भी पार्लर से आ चुकी थी। अलीज़े सारा के साथ अपने कमरे में ही मौजूद थी। तभी हुमा हया कमरे में दाखिल हुई। अलीज़े, जी भाभी, थोड़ी देर तक निकाह है, तैयार रहना। क्या मतलब निकाह है? वो तो कल होना था ना। मुझे नहीं करना आज निकाह। अलीज़े, ये क्या बात हुई? कल भी तो होना है, आज हो जाए। सारा प्लीज़ मेरे मामलात में मदाखलत मत करो। भाभी, आप मम्मा से कह दे कि मुझे आज निकाह नहीं करना, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहकर हुमा और हया वापस आ गई। अंसा बेगम बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी। चची जान, वो नहीं मानी। एक तो इस लड़की ने परेशान करके रखा हुआ है मुझे, खुद ही बात करनी पड़ेगी अब। सिकंदर उन सबकी बातें सुन रहा था, जो मेहंदी के लिहाज से ग्रीन कुर्ता और वाइट सलवार जेबतन किए हुए था, जो खूबसूरत वजाहत का मालिक, जिसकी शो थोड़ी बड़ी हुई थी। मामा, मम्मा रुकिए, आप, मैं और जोहेब जाते हैं, आप प्लीज़ परेशान ना हो। कहते हुए जोहेब और फातिमा अलीज़े के कमरे की जानिब बढ़ गए। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अलीज़े सारा को मना रही थी, जो कि इसके बिहेव की वजह से नाराज़ हो गई थी। अप्पी आप, अलीज़े क्या तमाशा बनाया हुआ है? क्या फ़र्क पड़ता है कि निकाह आज हो या कल? फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। अलीज़े बस करो अब, अपने अलावा घर वालों का भी सोचो। मैं क्यों किसी का सोचूं? क्या आप लोगों ने मेरे बारे में कुछ सोचा था? सारा, तुम ही इसे समझाओ। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। इसने कहा है कि मेरे मामलात में मदाखलत मत करो। अलीज़े, ये क्या बात हुई? वो आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जोहेब ने कदरे नरमी से कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे में खड़ा सिकंदर इन सब से मुखातिब था। हाँ हाँ बिल्कुल, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। फातिमा, अगर बुरा ना मानो तो मैं अलीज़े से बात कर सकता हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब तो अलीज़े आपकी ही होने वाली है। जोहेब ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ हाँ। फातिमा और सारा का कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा, आप बात करें, हम चलते हैं। तीनों बाहर निकल गए। फातिमा जाते हुए अलीज़े को चुप रहने का इशारा कर गई। सिकंदर तो इसकी ठुड्डी पर मौजूद तिल में ही खो गया था, जो शुरू से इसे सहर में मुब्तला कर देता था। अलीज़े, देखो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वाकई चची जान ठीक कहती है, तुम प्यार की ज़बान नहीं समझती। सिकंदर के लहजे में बेहद सख्ती थी। सिकंदर को अपने इस लहजे पे खुद भी हैरानी थी कि वो अलीज़े के साथ इतना सख्त कैसे हो सकता है। अलीज़े, मैं बार बार अपनी बात दोहराने का कायल नहीं हूँ, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। मौलवी साहब आ रहे हैं और आराम से निकाह पढ़ लेना।
मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो, कहते हुए सिकंदर जोर से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। अली से महबूद खड़ी उसके रवैये पे हैरान थी। अभी वो सोच ही रही थी, तभी फरहान और हया उससे मिलने आ गए। अली से जी भाई, चलो नीचे, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चलिए। अली से इनके साथ नीचे हॉल में चली गई। सिकंदर हॉल में मौजूद था। सब लोग अलीज़े का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अलीज़े हॉल में दाखिल हुई। सिकंदर और अलीज़े एक सोफे पर बरजमान थे। निकाह शुरू किया गया। निकाह के दौरान अलीज़े ने लॉकेट को हाथ में थामा हुआ था, जिसे सिकंदर ने देख लिया, लेकिन वो इग्नोर कर गया था। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। विकार शाह के कहने पे निकाह शुरू किया गया। मुबारक हो की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन अलीज़े इन सब से बेनियाज थी। अब वो अलीज़े अरशद शाह से अलीज़े सिकंदर शाह बन चुकी थी, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। निकाह के बाद खाना सर्व किया गया। खाने के बाद अब मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब लोग कपल की सूरत में तशरीफ़ लाए। आखिर में अलीज़े और सिकंदर आए। सबने मिलकर होटिंग की। सिकंदर और अलीज़े स्टेज पे बरजमान थे, लेकिन अलीज़े के चेहरे पे कोई भी तासुरात नहीं थे। वो सबको बस खाली खाली नज़रों से देख रही थी। पहले सारा इसके साथ होती थी, लेकिन वो भी उससे नाराज़ थी, इसलिए वो बिल्कुल चुप बैठी थी। सारा, तुम अलीज़े के पास जाओ, वो इस वक्त खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही है। नहीं सिकंदर भाई, मैं नहीं जा रही इसके पास। इसे भी एहसास हो के सब कुछ इसके लिए किया है हमने, इसकी खुशी के लिए। सिकंदर ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। मेहंदी की रस्म अदा की गई। शाह फैमिली की सब लोग खुश थे। अब जान लूंगी क्या इस गरीब की, गजब ढा रही हो आज तो। सबीन ने पीछे देखा तो अकमल शौक निगाहों से उसे देख रहा था। वो मेरे ममा बाबा अपनी बहू को ढूंढ रहे थे। साथ ही अकमल ने आग दबाई। सबीन बेटा। जी ममा। बेटा, ये अकमल की ममा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। क्या ख्याल है ममा, कल ही ना ले चले साथ में हम इसे? अगर ज़्यादा प्यारी लग रही है तो मौलवी साहब इधर ही किधर होंगे शायद। सबीन तो हया से पलके ही ना उठा पाई थी। अकमल बस करो, तंग ना करो मेरे बेटी को। वाह जी वाह ममा, आप तो अभी से बदल गई। तो और क्या, इतनी प्यारी है मेरी बेटी। अगर ये तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसकी क्लास लूंगी। जी जी बिल्कुल आंटी, अब आपको ही बताया करूंगी। अच्छा, आप लोग बातें करो, मैं मेहमानों से मिल लूँ। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था। सब वापस जा चुके थे, कुछ ही इधर थे। अच्छा आंटी, इजाज़त दे, काफ़ी लेट हो गए हैं हम, अब चलते हैं। सारा ने खड़े होते हुए इजाज़त ली। क्यों बेटा, तुम तो शादी तक इधर ही रुकने वाली थी ना? जी आंटी, लेकिन शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चलती हूँ। प्लीज़ रुक जाओ ना, अलीज़े ने आवाज़ दी। आई एम सो सॉरी, प्लीज़। उसकी ज़रूरत नहीं, मत जाओ ना, रुक जाओ फिर। अलीज़े की आंखों से आंसू रवां थे। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहते हुए सारा ने अलीज़े को गले लगाया। अलीज़े पार्लर जा चुकी थी। बाकी ख़वातीन भी काम में मसरूफ़ थी। ममा मेरी ड्रेस नहीं मिल रही। सबीन सीढ़ियों से उतरती हुई आमिना बेगम से मुखातिब थी। क्या हो गया है, शोर क्यों कर रही हो? तुम्हारे रूम में ही तो होंगी ड्रेस। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जा कहाँ सकती है, सबीन ने कहा। सिकंदर और हैदर आराम से सोफे पर बैठे थे। हया और हुमा काम करने में मसरूफ़ थी। प्लीज़ जाना, इसकी ड्रेस देख लो, नहीं तो इसे काम नहीं करने देना है मुझे, ताई जान देखती हुई बोली। चलो मेरे साथ। सबीन को लेकर वो उसके कमरे में जा चुकी थी, लेकिन वहाँ वाकई ड्रेस नहीं थी। देख लिए ममा, ड्रेस नहीं है। अब तो हया ने भी देख लिया है। ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद तुम्हारे रूम में ड्रेस रखवाई थी। एक मिनट ममा, ये हैदर सबीन के रूम में गया था। सबने हैदर को शक की निगाह से देखा। जी ताई जान, आपने ही भेजा था कि जाकर सबीन को बुला लाओ, बस मैं वापस आ गया था। लेकिन ममा, हैदर भाई के अलावा और कोई मेरे रूम में नहीं गया था। हैदर, ड्रेस तुमने छुपाई है ना? सच में मैंने नहीं छुपाई। सिकंदर पास बैठा अपनी हंसी दबा रहा था। सिकंदर भाई, आप भी साथ थे ना हैदर के? मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने ड्रेस उठाई है।
सबीन और सिकंदर के अलावा सब लोग अरशद शाह के पोर्शन में नाश्ते के लिए मौजूद थे। वैसे तो सब लोग खाना अपने पोर्शन में ही खाते थे, लेकिन जब शादी या कोई और तकरीब होती तो सब मिलकर ही खाना खाते थे। तभी अंसा बेगम ने हैदर को भेजकर सबीन और सिकंदर को बुलाया था। हैदर पहले सिकंदर को लेकर आया, फिर दोनों सबीन के कमरे में गए। सबीन कमरे में मौजूद नहीं थी। हैदर की नज़र उसके ड्रेस पर पड़ी। इसी वक्त हैदर को शरारत सूझी। हैदर ने सबीन की ड्रेस उठा ली। हैदर, पीटोगे क्या? इसे वापस रख दो। ओह, कुछ नहीं होता, तुम चलो। लेकिन जा कहाँ रहे हो? तुम्हारे कमरे में, जाहिर है मैं इसे साथ साथ तो नहीं रख सकता। हैदर, मत करो, अगर इसे पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। कौन बताएगा? कोई नहीं। अच्छा आप चलो, नहीं तो वो आ जाएंगी। हैदर और सिकंदर दूसरे कमरे में चले गए। जब वो बाहर आए तो इन्हें सबीन आती दिखाई दी। चलो सबीन, मैं तुम दोनों को बुलाने आया था। सब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा मैं दुपट्टा तब्दील कर लूँ? हैदर ने सिकंदर की तरफ देखा। अरे रहने दो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लो, चलो तुम। सिकंदर भाई, लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो। वो तीनों वापस चले गए। सिकंदर, ये हरकत दोनों की है, इसे ड्रेस वापस करो। ताई जान, क्या हो गया है? सिकंदर, क्या अपनी बारात पर पहनोगे वो ड्रेस? हया और हुमा का कहकहा बुलंद हुआ। मम्मा, ये काम इन दोनों लव बर्ड्स का है। मुझे नहीं पता, इन दोनों ने ही रखी है मेरी ड्रेस। क्या हुआ है मेरी बेटी को? विकार शाह ने हॉल में दाखिल होते हुए कहा। बाबा, इन दोनों लव बर्ड्स ने मेरी ड्रेस छुपाई है और अब बता नहीं रहे मुझे। पार्लर भी जाना है। अरे अरे, पार्लर क्यों जाना है? तुम तो वैसे ही चुड़ैल लगती हो, हैदर ने कहा और सिकंदर ने भरपूर साथ दिया। बाबा देख ले अब इन दोनों को। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल शहजादी है। जी जी बाबा, शहजादी है, वो भी हकाफ की। बाकी सब इनकी गुफ्तगू से लुफ्तअंदोज हो रहे थे। सबीन के मोबाइल की बेल बजी। देखिए बाबा, पार्लर की कॉल आ गई है, मेरा अपॉइंटमेंट है, प्लीज ले दे मुझे ड्रेस वापस इनसे। सिकंदर और हैदर, जल्दी वापस करो ड्रेस को। लेकिन बाबा, कोई बात नहीं, वापस करो जल्दी, विकार शाह ने थोड़ी सख्ती से कहा। जाओ, सिकंदर के रूम में है, ले लो। थैंक यू बाबा, तुम दोनों को तो बाद में देख लूंगी मैं। बाबा देखिए, धमकी दे रही है हमें। अब लड़ना बंद करो। सिकंदर बेटा, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। जी मम्मा। चल मेरे बड़ी, चलते हैं। हाँ चलो। दोनों सिकंदर के कमरे की जानिब बढ़ गए। बारात आ चुकी थी। सिकंदर स्टेज पर बरजमान था। इसने ब्लैक कलर की शेरवानी जेबतन की थी, जिसमें वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। अलीज़े ड्रेसिंग रूम में थी। हया और फरहान उसे लेने आए थे। अलीज़े ने हल्के पीच कलर का फ्रॉक जेबतन किया हुआ था और इसके साथ पिंक कलर का कामदार दुपट्टा लिया हुआ था, जिस पर बहुत ही नफासत से काम किया हुआ था। इसके अलावा मेकअप ने इसे 4 चांद लगा दिए थे। अलीज़े की आंखें सूजी हुई थी। इसकी आंखों के किनारे अभी भी गीले थे। साफ जाहिर था कि वो बहुत देर तक रोती रही है। चलो अलीज़े, हॉल में चले, फरहान ने प्यार से कहा। इसके सर पर हाथ रखा। इसकी आंखें भी नम हुई थी। अलीज़े फरहान और हया के साथ हॉल में दाखिल हुई। सब ने वालहाना इस्तकबाल किया। सिकंदर स्टेज पे खड़ा हो गया था। वो तो इसके शहर में मुब्तला हो गया था, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने आगे बढ़कर अपनी हथेली अलीज़े के आगे की। उसने ना चाहते हुए भी उसका हाथ थाम लिया। दोनों स्टेज पर बरजमान थे, साथ ही घर के बड़े अफराद थे। सारी रस्में मुकम्मल हो चुकी थी। तभी सारा दूध लेकर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके जहन में अली के साथ हुई बातें घूम रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को सेट कर लिया। अब चलिए, दूध तो पी लिया है, हैदर ने शरारत से कहा। हाँ हाँ चलिए। अरे अरे, ये क्या बात हुई? पैसे तो दे हमें। कौन से पैसे? ये जो दूध पिया है इसके। पहले बता देती कि पैसे भी लेने हैं। नहीं पीता मैं दूध। भाई, ये कोई बात नहीं है। हम जितनी लड़कियां हैं सबके हिसाब से 10-10 हज़ार चाहिए हमें। सब लड़कियों ने मिलकर होटिंग की। अरे अरे लड़की, तुम तो मेरे भाई को लूट रही हो। हम सिर्फ 10 रुपये दे सकते हैं, लेने हैं तो लो, नहीं तो अल्लाह हाफिज। अलीज़े, तुम कुछ कहो ना भाई को। अलीज़े ने कंधे उचकाए। सिकंदर, जो मांग रही है जल्दी दो इन्हें और चलो। बाबा, ये तो कोई बात नहीं, आप इनकी साइड ले रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो घर भी जाना है, वहाँ पे भी जेब हल्की करवानी है आपको। सबीन, तुम तो मेरी बहन हो। नहीं जी, मैं अलीज़े की बहन हूँ। ये सुबह वाला बदला है, लेकिन वो हैदर का आइडिया था। जो भी था, आप भी शामिल थे उसमें। पहले आपके साथ दो दो हाथ कर लूँ, उनको भी देख लूँगी। चलिए सिकंदर भाई, 60,000 निकालिए। ओहो, इस बात के तो 50 बनते हैं। हेलो, मेरी बेटी भी है, फातिमा ने बुलंद आवाज़ की। नहीं जी, माहम तो मामू के साथ है। माहम ने नफ़ी में सर हिलाया। सब ने कह कह लगाया। सिकंदर ने पैसे सारा के हवाले कर दिए। बारात घर वापस आ चुकी थी। सारी रस्मों के बाद हया और हुमा अलीज़े को सिकंदर के कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। सिकंदर बाहर हॉल में था। सबीन उसका रास्ता रोके खड़ी थी। पैसे दो और जाओ। ये क्या मसला है, फिर से पैसे दूँ? हाँ हाँ बाबा, आप भी इसके साथ मिल गए हैं। सिकंदर, एक तो बहन है तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करो। चलो दो उसे पैसे। अच्छा ये लो पैसे, और अब जान छोड़ो मेरी। छोड़ दी जान आपकी, जाइए आप। सिकंदर कमरे में जा चुका था। बाकी सब भी चले गए थे हॉल में। सिर्फ सबीन और हुमा मौजूद थी। सिकंदर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो किसी भी जाविये से सिकंदर का कमरा नहीं लग रहा था। अलीज़े ने ड्रेसिंग की सारी चीज़ें फेंक दी थी। फूलों की डेकोरेशन खराब हो गई थी। अलीज़े नीचे सोफे के साथ टेक लगा कर बैठी थी और ज़ारो कतार रो रही थी। सिकंदर ने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो जब वापस आया तो अलीज़े इसी तरह बैठी हुई थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें रखी और नीचे अलीज़े के पास आकर बैठ गया। अलीज़े, उसने पुकारा, लेकिन अलीज़े का रिएक्शन बिल्कुल अजीब था। दूर हटो मुझसे, पास मत आना, वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इस दिन इनकार किया होता तो आज मैं इस असियत में ना होती। जाओ यहाँ से। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम रिलैक्स हो रहो। सिकंदर उठकर बाहर चला गया। सबीन और हुमा बाहर हॉल में ही अभी तक बैठी हुई थी। दोनों सिकंदर को आता देखकर हैरान हो गई। सबीन, प्लीज़ एक कप कॉफ़ी बना दो। जी भाई, मैं बना देती हूँ। सबीन उठकर किचन में चली गई। सिकंदर मोबाइल में बिजी हो गया। सिकंदर भाई, सब ठीक है ना? सिकंदर कुछ देर तो खामोश रहा, फिर बोला, भाभी प्लीज़ आप ऊपर जाए अलीज़े के पास। क्यों, क्या हुआ अलीज़े को? पता नहीं, खुद ही जाकर देख ले। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ। भाई ये कॉफ़ी ले, रख दो इधर। भाभी आप कहाँ जा रही है? अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे, तुम भी चलो मेरे साथ। अलीज़े, ये क्या किया तुमने? हुमा कमरे की हालत देखकर घबरा गई। सबीन भी दम बखुद खड़ी थी। चलो उठो यहाँ से। सबीन, तुम कमरा ठीक करो जल्दी से। हुमा ने अलीज़े को उठाकर कुर्सी पर बिठाया। अलीज़े तो जैसे पत्थर की हो गई थी। बस इसकी आंखों से आंसू रवा थे। हुमा वार्डरोब से कपड़े लेकर आई और उसे चेंज करने का कहा और खुद सबीन के साथ मिलकर कमरा ठीक किया। अलीज़े फ्रेश होकर बाहर आई। हुमा ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद ड्रेसिंग चेयर खींच कर उसके सामने बैठ गई। अलीज़े सर झुकाए बैठी थी। सबीन उसके पास बैठी थी। अलीज़े, इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है? क्यों तुम ये बात नहीं मान जाती कि इंसान खुदा के फैसलों के आगे कुछ नहीं कर सकता? हम बेबस हैं। अलीज़े जवाब में सिर्फ आंसू बहा रही थी। अलीज़े, इन सब में सिकंदर भाई का क्या कसूर है? उनको किसी चीज़ की सज़ा दे रही हो तुम। पहले की बात और थी और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं यही कहूँगी कि अब तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो। सॉरी भाभी, बस मैं खुद गर्ज हो जाती हूँ इस मामले में। मैं बहुत बेबस हूँ। आप लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अलीज़े, कुछ गलत भी नहीं किया हम लोगों ने तुम्हारे साथ। भाभी, मैं अभी इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ओके, ले लो वक्त जितना लेना है, लेकिन अब सिकंदर से बदतमीजी मत करना। अच्छा नहीं करती कुछ उन्हें। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, कोई और बात नहीं करनी सिकंदर भाई से। सिकंदर जब कमरे में आया तो अलीज़े सो चुकी थी। सिकंदर ने एक नज़र अलीज़े को देखा और लाइट ऑफ करके सो गया। सिकंदर की जब आँख खुली तो अलीज़े कमरे में नहीं थी। सिकंदर फौरन उठकर बैठ गया। ओहो,
कहीं ये अकेली नीचे तो नहीं चली गई। सिकंदर जल्दी से उठा, वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने टेरिस का दरवाज़ा खोला, अलीज़े वहाँ भी नहीं थी। तभी उसको कमरे के साथ मलहका लाइब्रेरी का ख्याल आया। इसका दरवाज़ा आज खुला हुआ था। उसने कमरे में झांका। अलीज़े आरामदाह कुर्सी पे आंखें मूंदे लेटी हुई थी। किसी की आहट पाकर उठ गई। सिकंदर उससे थोड़ा फासले पर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो फौरन खड़ी हो गई। वो मुझे कुछ कहना है आपसे। अलीज़े इस वक्त सिकंदर की नज़रों के खसार में थी, जिससे वो थोड़ा घबरा गई थी। हाँ बोलो। वो कल के लिए रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दे। कुछ कतरे अलीज़े की आंखों से बह निकले थे। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। वो इट्स ओके। साथ ही सिकंदर ने अपना हाथ से उसकी आंखों से आंसू साफ किए। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। सिकंदर बाहर निकल गया। आ जाओ। हया कमरे में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। हम नाश्ता लेकर आए हैं, तो आप दोनों का इंतज़ार हो रहा था, तो आप तशरीफ़ ले आइए। अच्छा जी, हम आते हैं, बस थोड़ी देर तक। ठीक है, मैं चलती हूँ। अलीज़े तैयार हो जाओ, नीचे मम्मा बाबा इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर। अच्छा ठीक है। अलीज़े ने वार्डरोब से कपड़े निकाले और चली गई। अलीज़े फ्रेश होकर आई तो सिकंदर बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। अलीज़े को देखते ही वो उसके सहर में मुब्तला हो गया। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ। आओ कि शबनम की बूंदें बरसती है, मौसम इशारा है कि हाँ अब तो चले आओ। सिकंदर अलीज़े की तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो परेशान हो गई थी। सिकंदर अलीज़े के बिल्कुल करीब था। वो अलीज़े की धड़कनों को आसानी से सुन सकता था। आप तैयार हो जाइए, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ मैं आता हूँ। सिकंदर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अलीज़े ने सुकून का सांस लिया और तैयार होने चली गई। शुक्र है आप लोग आ गए, हमें तो लगता था अब रात को ही खाना मिलेगा। सबीन ने सिकंदर और अलीज़े को देखकर कहा। ऐसे कैसे रात को मिलता, हम आ ही रहे थे बस। अलीज़े ने नीचे आकर सबको सलाम किया। अलीज़े सबीन के साथ बैठने लगी, तभी आमिना बेगम ने उसे रोक दिया। यहाँ क्यों बैठ रही हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, सिकंदर के साथ बैठो। जी। वो सरसरी सा जवाब देकर सिकंदर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। नाश्ता खामोशी से किया गया। नुमान शाह और अरशद शाह लोग वापस जा चुके थे। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ विकार शाह की फैमिली थी। दानियाल को अस्पताल में इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से वो नाश्ता करने के बाद ही चला गया था। विकार शाह अरशद शाह नुमान शाह के साथ हॉल में वलीमे के इंतजामात देखने चले गए थे। अलीज़े बेटा ये क्या कर रही हो, रखो इसे नीचे। आमिना बेगम अलीज़े से मुखातिब हुई, जो बर्तन उठाने लगी थी। ताईजान किचन में रखने जा रही हूँ बर्तन। ओहो बेटा, अभी शादी का पहला दिन है, लोगों ने कहना हो काम पे लगा दिया है बच्ची को। कुछ नहीं होता, पहले भी करती थी। शादी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ताईजान। बेटा पहले की बात और थी, इसे रखो तुम, हम तीनों कर लेंगे। जी ताईजान। और हाँ मुझे अब मम्मा बोला करो, जैसे हुमा कहती है। ओके मम्मा। चलो शाबाश, अपने कमरे में चली जाओ, 3 बजे तक ब्यूटिशियन भी आ जाएंगी, तुम रेस्ट कर लो तब तक। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहे। सिकंदर और अलीज़े अपने कमरे में चले गए। बेगम क्या हुआ, जब से आई हो उधर से परेशान हो? आपको नहीं लगता कि हमने जाने अनजाने में अलीज़े के साथ ज़्यादती की है? हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए था इसे। पता नहीं वो सिकंदर को और इस शादी को एक्सेप्ट भी कर पाई है या नहीं। आप फिक्र ना करें, आज या कल तो हमें इसकी शादी करनी ही थी। इसकी और सिकंदर घर का बच्चा है, और एक बेटी को तो हम दूर विदा कर गए, अब ये हमारे सामने ही रहेंगी हमेशा। और वैसे भी अगर अलीज़े अली को पसंद ना करती तो मेरा यही ख्याल था कि सिकंदर अलीज़े की शादी हो जाए। हाँ, अल्लाह बस दोनों को खुश रखे, आमीन आमीन। अलीज़े बेड की एक साइड पे बैठी किसी सोच में गुम थी। सिकंदर दूसरी साइड पे बैठ गया। अलीज़े अलीज़े 2-3 दफ़ा पुकारने पे जब आवाज़ ना आई तो सिकंदर ने उसके कांधा हिलाया। मैं कब से बुला रहा हूँ, कहाँ गुम हो? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है मुझसे।
شادی کن حالات میں ہوئی یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں ابھی اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب تم سو جاؤ، مجھے لگتا ہے ساری رات سوئی نہیں ہو تم۔ سکندر اٹھ کے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور علیزے بستر پر دراز ہو گئی۔ علیزے اب اٹھ بھی جاؤ، کتنی دیر سونے کا ارادہ ہے؟ بھابھی آپ؟ جی بالکل میں۔ اٹھو جلدی سے، بیوٹیشین آ گئی ہے۔ اتنی جلدی بھابھی؟ 3 بج گئے ہیں۔ کیا 3 بج گئے؟ بلکہ 3:30 ہو گئے ہیں۔ او شٹ، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اچھا اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں اسے بھیجتی ہوں۔ جی اچھا۔ مما پلیز آپ میرے روم سے میرا ڈریس لا دے، مجھے تیار ہونا ہے، پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ آمینہ بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مما کہاں جا رہی ہے؟ پہلے مجھے ڈریس لا کے دینا۔ اچھا رکو میں آتی ہوں۔ آمینہ بیگم جب کمرے سے باہر آئی تو ان کے پاس ایک ڈبہ تھا۔ مما یہ کیا ہے؟ یہ علیزے کے کنگن ہے، میں نے اس کے لیے تھے، کیسے لگے؟ بہت اچھے۔ علیزے بیٹا؟ جی مما۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ بری نظر سے بچائے، آمین۔ میم کوئی کمی ہو تو بتائیے۔ نہیں سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ اوکے میم میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ بیوٹیشین اللہ حافظ کہتی چلی گئی۔ اچھا میں تمہارے لیے یہ لائی تھی، پہن لو۔ یہ کیا ہے مما؟ بیٹا یہ تمہاری شادی کا گفٹ ہے، کل دے نہیں سکی، اب یاد آئی تو لے آئی ہوں۔ علیزے نے ڈبہ کھولا تو اس میں سونے کے کنگن تھے۔ شکریہ مما، یہ بہت پیارے ہے۔ ارے بیٹا شکریہ کس بات کی؟ آج کے بعد کوئی شکریہ نہیں کروں گی تم۔ جی مما۔ میں سکندر کا ڈریس لینے آئی تھی، اب تو بیوٹیشین چلی گئی ہے، اسے ہی کمرے میں بھیج دیتی ہوں۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا تو وہ علیزے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علیزے نے لائٹ پنک کلر کا ٹیل گاؤن پہنا ہوا تھا جس میں وہ پری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گلے میں وہ لاکٹ ابھی تک موجود تھا لیکن سکندر نے نظر انداز کر دیا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ سکندر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ علیزے سکندر سے نظر چرا گئی۔ یہ کیا کنگن تو پہنے نہیں ابھی تک تم نے؟ لاؤ میں پہنا دوں، ادھر دو مجھے۔ سکندر نے اس سے کنگن پہنائے اور خود تیار ہونے کے لیے چلا گیا۔ تم ابھی تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بیڈ پر بیٹھ جاؤ، ایسے تو تھک جاؤں گی۔ جی لیکن ڈریس بھاری ہے اس لیے اٹھ نہیں سکتی۔ سکندر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا جسے دیکھ کے اس نے سکندر کو گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹھی رہو ادھر ہی۔ سکندر بیڈ کی طرف بڑھ گیا، اپنا کوٹ اٹھا کر علیزے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بالکل تیار تھا۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور خود باہر جانے لگا۔ کچھ یاد آنے پر وہ واپس پلٹا۔ اس نے دروازہ کھول کے ایک ڈبہ نکالا اور علیزے کے آگے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو، میں نے کھولا تو پھر مجھے گھورنے لگوں گی تم۔ علیزے نے ڈبہ کھولا، اس میں لاکٹ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑا سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا اور اس کے سائڈ پہ کئی چھوٹے چھوٹے سے ڈائمنڈ تھے۔ شکریہ اس کے لیے، لیکن پتا ہے مجھے تم ابھی نہیں پہن سکتی، لیکن جس دن تمہارا دل کرے اس دن پہن لینا، میں فورس نہیں کروں گا۔ سکندر باہر جانے لگا تبھی علیزے نے آواز دی، اچھا اب میرے اٹھنے میں مدد کرے۔ اب کیا میں ایسے ہی بیٹھے رہوں گی؟ سکندر نے مسکرا دیا جیسے اس نے خوشی سے تھام لیا اور سکندر نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اتنے میں سبین آ گئی۔ بھائی علیزے کو نیچے لے آئے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا چلو آ جاؤ۔ سکندر نے علیزے کا ہاتھ پکڑا اور سبین نے اس کا ڈریس سنبھالا۔ سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ علیزے اور سکندر صوفے پر برجمان تھے۔